Guys, question number 23. Question number 23. Page number 2.39. आवाज बंद आवाज बंद आवाज बंद आवाज बंद बिल्कुल चुप बिल्कुल. Page number 2.38. Question number 23. 22 sorry. तूने मिस करी थी लास्ट क्लास. अभी क्या हो गया? हाँ हाँ तो फिर ऐसे क्या हो गया? So 22 question 22. Okay guys, देखो you can decide two things. Option 1, option 2. Which one do you prefer? Pavni. Oh, start please. Okay, question number 22. Please, can someone read? Can someone read question 22? यार एक बुक दे दो यार, ऊपर रख ले बुक. So average profit earned by the firm is equal to 1 lakh, which include undervaluation of stock. अगर आपको mention नहीं है कि whether it's a opening stock or it's a closing stock, then by default it is closing stock. अब देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्लास 11th में जाओ, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक इधर आता था. क्रेडिट साइड इज द प्लस साइड, डेबिट साइड वाज द माइनस साइड. डेबिट साइड आपके लॉसेस को बढ़ाता है, क्रेडिट साइड आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है. अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक लेट्स से कितना होना चाहिए था, 1 लाख होना चाहिए था, बट आपने यहाँ पर 1 लाख नहीं दिखा के यहाँ पर 60,000 दिखा दिया, so that means you have undervalued your closing stock by 40,000. तो इसकी वजह से क्या होएगा, इसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट आएगा that is falling. So if the stock is undervalued, आप उस स्टॉक को बढ़ाओगे, स्टॉक को बढ़ाने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, 40,000 से. So you will add 40,000. Is this clear to everyone? ठीक है. Okay, the capital invested in the business 6 lakh 30 and normal rate of return is 5%. So how do we calculate normal profit? Normal profit is equal to capital employed into market rate या फिर normal rate by 100. So capital employed 6 lakh 30,000 into market rate normal rate by 100. ये निकालो कितना आएगा? 31500. 31500, 31,500. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit. So how do you calculate super profit? Super profit is average profit minus normal profit. So 1,40,000 minus 31,500. Please calculate this. कितना आ रहा है? 1,08,500. And then goodwill is equal to 1,08,500 into number of year purchases. 542. ठीक है guys, किसी को डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Question 23. So average profit earned by the firm 7,50,000, which include overvaluation of stock. So again, अगर आपको मेंशन नहीं है कि whether it's a closing stock or it's a opening stock, by default closing stock. Closing stock प्रॉफिट को बढ़ाता है, बट अगर आपने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट को एक्सेस बढ़ा के रखा हुआ है. सो व्हाट यू विल डू, सब्ट्रैक्ट. सो यू विल सब्ट्रैक्ट हाउ मच, 7,20,000. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज
normal profit is capital employed into rate by 100. So capital employed आपको कितना गिवन है? Rate of is 15%. This will be 6 lakh 30. Next, calculate super profit. Average profit minus normal profit, which is 789, 90,000, and then calculate goodwill. Super profit into number of year purchases. Okay, guys, easy. Let's try to finish this chapter today, and after this chapter, we'll start with chapter 4. And guys, please don't miss classes for chapter 4. क्योंकि अगर chapter 4 गया, तो chapter 5 गया, chapter 6 गया, and chapter 3 भी गया. So all the next, अब जो जितने भी chapters हैं सब interlinked हैं. अगर आपका first chapter नहीं हुआ, manage हो जाएगा. We have entire summer vacation. But अगर आपका admission नहीं हुआ, तो आपका retirement गया, death गया, and change in PSR गया. ठीक है? Dissolution is the 7th chapter. वो standalone है, वो अलग chapter है. इन केस अगर किसी का गुडविल भी मिस हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस चैप्टर नहीं है. ठीक है, इजी चैप्टर है. Okay, so they have given you 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 का डेटा. 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000, 2,60,000, 2,40,000. अच्छा, अब देखो इसमें एबनॉर्मल लॉस हो रहा है. एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे हम? ऐड. और किस ईयर में हो रहा है ये? 2024 में. एंड कितने अमाउंट का हो रहा है? 1 लाख का हो रहा है. सो यू विल ऐड 1 लाख हियर. So normal business profits we have to calculate. So abnormal events को हमें हटाना है. Non-recurring events का effect हमें हटाना है. ठीक है? जो profits future के अंदर carry forward होंगे over the years, उन्हीं profits को हमें consider करना है. So that's why we are removing the effect of abnormal losses by adding them back. And then we have abnormal gain of 40,000. उसको क्या करेंगे? माइनस. तो एबनॉर्मल इवेंट्स का इफेक्ट हटा रहे हैं. ठीक है, गेन को हमने प्लस करा था व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट. नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट. उसका इफेक्ट हम हटा रहे हैं. ओके, प्लीज कैलकुलेट दिस. अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है क्या इसमें? So they agreed to value goodwill at 3-year purchase of the super profit, for which they decided average profit to be calculated for 5 years. Okay, so कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं ये? 1,50,000, 1,80,000, 2 lakh, 2,20,000, 2,40,000. Guys, please add this up. Let me know the total. 9,000. 9,90,000 और 198. Wait. ये 9,90,000 total आ गया. So average profit is equal to 9,90,000 divided by 5. कितना आ रहा है? 198,000. And now your goodwill is equal to 198,000 into 3. 3. Yeah, C. Sorry. अच्छा, I'm sorry. Okay. मैंने उससे I thought average profit से. Okay, next step, we need normal profit. Normal profit is equal to capital employed into rate by 100. अच्छा, capital employed निकालने का एक और तरीका है. See, capital employed is the money which is invested by the partners plus reserve and surplus. So अगर आपके पास capital and reserves नहीं है, तो उसके अलावा बैलेंस शीट में और क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, एंड इस पूरे का टोटल क्या होगा? टोटल एसेट्स.
सो टोटल एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगा, आई गेट दिस व्हिच विल बी द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. 15 लाख. सो टोटल एसेट्स कितने गिवन है हमें? 20 lakhs. 20 lakhs and outside liability 5 lakhs. So capital employed will be 15 lakh and rate of interest. हाँ? So ये कितना हो गया? Okay, so guys, please do the rest. Calculate super profit, multiply it by number of year purchase, and check if you're getting the answer or not. If you are not getting the answer, I cannot help. Next heading डालो please. Capitalization method. So in the last class we have written how to calculate capital employed. दो तरीके से, एक asset approach से and दूसरा partners के capitals को add करके, reserve को add करके, ठीक है? So that would be required here. So capitalization method में हम क्या करेंगे? We are going to study two different methods. First one is known as capitalization of average profits. Capitalization of average profits. इसमें step 1 calculate capitalized value. इसका मतलब समझो. सुपर प्रॉफिट में हम क्या कर रहे थे? सुपर प्रॉफिट में हम बोल रहे थे कि आई हैव इन्वेस्टेड, लेट्स से, एंड स्टार्टेड माय बिजनेस. ऑन एन एवरेज मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं? 1 लाख अर्न कर रहा हूं. कितना रेट ऑफ रिटर्न हो गया? If I am earning 1 lakh on 10 lakh rupees, so how much I am earning in percentage? 10%. ठीक है. So if I invest 10 lakh in my business is giving me a return of 1 lakh rupees. Fine. अगर मैं अपना business start नहीं करता, and if I would have invested this 10 lakh in the market मुझे कितना देता? Let's say 7% देता. So I am over and above the market by 3%. I am earning more than the market by 3%. अब हम उल्टा कर रहे हैं. हम बोलते हैं कि यार मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना है? मेरा एवरेज प्रॉफिट लेट्स से 10,000 रुपीज है, ठीक है? एंड रेट ऑफ रिटर्न कितना है जो मुझे मार्केट दे रहा है? मुझे 10% मार्केट दे रहा है रेट ऑफ रिटर्न. मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना है? मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है 10%. मार्केट में 10% मिल रहा है, ठीक है? उल्टा चलते हैं. देखो, average profit of my business is 10,000 and market rate is, let's say, 10%. So to earn this average profit from the market, how much capital I have to invest? आया समझ ये चीज? पहले सुपर प्रॉफिट में हमने क्या करा था? अगर मैं 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है? 1 लाख. 10% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? तो मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करा, मुझे 1 लाख का रिटर्न मिला. मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है? चलो इसको सेम ले लेते हैं, 1 लाख, ठीक है? मुझे ये पता लगाना है, मैं अपने बिजनेस में नहीं लगा रहा हूं ये पैसा, मुझे ये पता लगाना है कि ये 1 लाख रुपीस अगर मुझे मार्केट से लेना है, ठीक है, और मार्केट कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है? 10%. तो कितना पैसा इन्वेस्ट करूं जिसमें मुझे 10% मिले? दैट इज इक्वल टू 1 लाख. ये आया समझ? पहले सिनेरियो में सुपर प्रॉफिट में हमने क्या करा था? अगर मैं 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करूंगा तो मार्केट कितना देगी? 7% देगी. अगर मैं 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस कितना दे रहा है? 10% दे रहा है. अब हम उल्टा चल रहे हैं. मेरा बिजनेस 1 लाख दे रहा है,
मार्केट से कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है? 10%। तो यही 1,00,000 रुपीज अगर मुझे मार्केट से कमाना है तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ये आया समझ? ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी इनकम हर साल पैसिव इनकम 1,00,000 होनी चाहिए। तो उसके लिए मार्केट मुझे कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है? मार्केट बोल रहा है जो आप इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको 10% मिलेगा। तो आई विल डू द बैक इंजीनियरिंग जो चाइना करता है। ठीक है, तो यार अगर मुझे 1,00,000 रुपीज चाहिए, 10% मुझे मार्केट देगी, तो मैं कितना इन्वेस्ट करूं? तो कैसे निकालेंगे? यू विल टेक योर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10। इसको ऐसे समझो, मैं मार्केट के अंदर कितना कैपिटल इन्वेस्ट करूं मुझे उस पे 10% मिले, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1,00,000। सो हाउ मच कैपिटल विल बी? 10,00,000। आया समझ लीजिए। तो हम उल्टा चल रहे हैं भाई। सो calculate the capitalized value which is equal to average profit into 100 divided by market rate or normal rate। so मुझे कितना मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में ताकि मेरे पास उतना प्रॉफिट आए जो मेरा बिजनेस अभी अर्न कर रहा है? समझ भाई? सो दिस यू एक्चुअल में कितना कैपिटल एम्प्लॉय करा अपने बिजनेस में। लेट्स से मैंने कितना एम्प्लॉय करा, ये कितना निकल के आया था? 10,00,000 निकल के आया था। एंड मैंने अपने बिजनेस में कितना एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है? लेट्स से 8,00,000 एम्प्लॉय कर रखा है कैपिटल। सो दैट मींस व्हाट? मार्केट बोल रहा है टू अर्न 1,00,000 यू हैव टू इन्वेस्ट 10,00,000, बट मैंने यही 1,00,000 कितने में अर्न करा? 8,00,000 रुपीज इन्वेस्ट करके। तो 2,00,000 की गुडविल होगी। फिर से समझाऊं? हाँ, एक बार लिख लो गुडविल। अब इसको दूसरी तरीके से समझे। मेरे पास 8,00,000 रुपीज है, मैंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस ने मुझे एवरेज प्रॉफिट कितना दिया? 1,00,000। इतना समझ आया? मार्केट रेट क्या है? 10% है भाई। अब देखो, अगर मैं 8,00,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं और मैं उस पर 1,00,000 रुपीज अर्न कर पा रहा हूं, तो यार मार्केट कितना दे रहा है मुझे? मतलब मुझे मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे यही 1,00,000 रुपीज मिल जाए? या है समझ? आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको बोला जाता है यार क्या जरूरत है अपना बिजनेस करने के लिए, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, आपको सेम मनी मिल जाएगा। तो आप बोलोगे यार चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। आप ये चेक करोगे यार मैंने अपने बिजनेस के अंदर आज तक कितना इन्वेस्ट करा है? 8,00,000 रुपीज इन्वेस्ट करा है। उस पर मेरा बिजनेस कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है? 1,00,000 रुपीज का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अब मार्केट में मैं कितना इन्वेस्ट करूं कि मुझे ये 1,00,000 रुपीज मिले? तो मार्केट मुझे कितना रिटर्न दे रहा है? 10%। सो मार्केट के अंदर मैं कितना कैपिटल इन्वेस्ट करूं इस 10% पे कि मेरे पास 1,00,000 आए? तो मार्केट क्या बोल रहा है? मार्केट बोल रहा है यू हैव टू इन्वेस्ट 10,00,000। ये इधर जाएगा, 10,00,000 आ गया। इज दिस क्लियर? तो मैं तो 8,00,000 रुपीज में ही जनरेट कर पा रहा हूँ 1,00,000, बट मार्केट बोल रही है जी 10,00,000 रुपीज लगेंगे। सो आई एम एबल टू जनरेट हायर रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग लेस कैपिटल। सो ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज योर गुडविल। आया समझ लीजिए? क्लियर? लिख लो प्लीज गुडविल कैसे निकालना है। डन, बड़े आगे लिखिए सबने। सो द सेकंड मेथड इज capitalization of super profits।
सिंपल है. First you will calculate super profit, which is equal to average profit minus normal profit, and then you will calculate goodwill, which is super profit into 100 by rate, 100 by market rate. अब हमने ना आपको क्वेश्चन में बोल दिया कैलकुलेट गुडविल थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड. हमने मेंशन नहीं करा कि कैपिटलाइजेशन करना है या हमने जो पहले करा था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस. तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस नहीं गिवन, सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन. हमने इसमें क्या करा था, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई करा था सुपर प्रॉफिट को. ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करा था सुपर प्रॉफिट से. ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट निकाला था इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. बट मुझे गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज, देन यू हैव टू यूज कैपिटलाइजेशन मेथड. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना. You have to see what data they have given you in the question and accordingly you have to solve the question. So let's come to the next question. Question number 25. अच्छा, this is going to be the last class. Whatever question we are able to complete of this chapter, we will do it. जो question बच जाएंगे 3-4 वो घर पे प्लीज कंप्लीट करना. कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये वाला चैप्टर. 3-4 क्वेश्चन आप घर पे भी कर सकते हो. So capital employed is 16 लाख. ये हमें गिवन है. So step 1 क्या होता है, we have to calculate capitalized value. For that we need average profit into 100 divided by market rate. Two lakh into 100 divided by 10, 20 lakh, and then calculate goodwill. 20 lakh minus 16 lakh, which is equal to 4 lakh. ठीक है, अगेन गाइस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैंने ऐसे अपने मर्जी से नहीं करा कैपिटलाइजेशन. क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, या फिर वो बोलेगा कैपिटलाइजेशन मेथड. सो व्हेन दे आर जस्ट सेइंग कैपिटलाइजेशन मेथड, यू हैव टू सी व्हाट डेटा दे हैव गिवन यू. तो यहाँ पर आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड ही लगेगा. दोनों से कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट से भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन. ठीक है, उनमें लिखा क्या हुआ है, हाँ बस कैपिटलाइजेशन है लिखा हुआ है. यू कैन डू इट बाय आइदर ऑफ द मेथड, बट लेट्स फॉलो दिस ओनली फॉर द टाइमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 26. सो वहां पर दे हैव क्लियरली स्टेटेड इन द लास्ट लाइन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. अच्छा प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, एडजस्टमेंट क्या है, पास एडजस्टमेंट. पास एडजस्टमेंट का टेस्ट कभी भी है, कभी भी है. मतलब आओगे यहाँ पर बैठोगे मैं टेस्ट पेपर पकड़ा दूंगा, कभी भी ले सकता हूँ. तो यू हैव टू ऑप्शन, स्टार्ट स्किपिंग क्लासेस सो दैट मैं चैप्टर 3, 4, 5 पे जाऊंगा तो आपका वो मिस होते चले जाए एंड देन यू आर डूम्ड फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर. या फिर वो टेस्ट दे देना, आई एम गोइंग टू चेक बट आई एम नॉट गोइंग टू मार्क. ठीक है, पर्पस ऑफ टेस्ट इज नॉट टू शो कि आप लोगों को कुछ नहीं आता. पर्पस ऑफ द टेस्ट इज टू मेक यू प्रैक्टिस. ठीक है, तो इंटेंट समझ के टेस्ट दो, ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग द टेस्ट. टेस्ट का देखो पर्पस बस एक ही है. टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि चेक करो और दिखाओ कि वरुण को कुछ भी नहीं आता. ठीक है, ये नहीं है. हाँ हाँ, तो टेस्ट का पर्पस ये है कि यार यू हैव टू प्रैक्टिस एंड एज यू राइट दीज टेस्ट यू विल बी एबल टू रिमेम्बर. ठीक है, तो आप अगर घर पे हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, व्हाटएवर टाइम यू कैन स्पेंड, रिवाइज करो उस टॉपिक को, कम राइट द टेस्ट. इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, गो होम एंड सी कि यार कहाँ गलती है. मुझे अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, यू नीड एक्स्ट्रा क्लास फॉर दैट, आस्क. ठीक है, ओके, डोंट आस्क फॉर द एंटायर चैप्टर की क्लास. टॉपिक वाइज चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा. ये नहीं कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, पूरा चैप्टर फिर से लगाओ. हाँ, अबे तो वो मैं भी मैनेज कर सकता हूँ ना. पास्ट एडजस्टमेंट का टेस्ट लिया, चलो हमने वो पेपर फिर से क्लास में डिस्कस करा, तो एटलीस्ट वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. फिर गारंटी का टेस्ट लिया, वो डिस्कस करा क्लास में,
ऐसे तो तुम बोलोगे मुझे तो पूरा चैप्टर ही नहीं आता, तो बेटा मेरी जय माता दी हो जाएगी। एनीवेज, ओके, सो एवरेज प्रॉफिट 3 lakh and normal of the business are 7. Calculate cap value. Capitalized value is equal to average profit into 100 divided by rate, which is 15%. ठीक है, so 15 2 जा, and capital employed कैसे निकलेगा? Total assets minus external liabilities. So total assets are 72. कितना हो गया यार? ये तो आंसर कर सकते हो, सारा लेबर वर्क मेरे से करवा रहे हो। So goodwill is equal to capitalized value minus, यार लिख लो, थक गया भाई। Next question please। 27। हाँ हाँ हो तो रही है, पढ़ रही रिकॉर्ड वो मिला था। Okay, question 27। A and B were partners in a firm with capitals of 3 lakh and capitalized value 50। Guys थोड़ा शांति प्लीज। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होएगा? कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। सो गुडविल क्या होएगी? दोनों का डिफरेंस। क्वेश्चन 28। अच्छा, क्वेश्चन 28 के अंदर ना प्लीज कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू एंड टेल मी। कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ जरा। 550 क्या रुपीस? अरे 550 रुपीज हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ जी प्लीज बताइए कैपिटलाइज वैल्यू क्या है? इतना तो ओके, कैन यू टेल मी द एवरेज प्रॉफिट? 1 लाख इनटू 100 बाय 10। अच्छा अब देखिए, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लिखवाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स प्लस करंट अकाउंट के बैलेंसेस। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इट विल बी एडेड, बट अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इट विल बी सबट्रैक्टेड। सो कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। सो आपको कैपिटल बैलेंसेस जो दे रखे हैं दैट इज 2,50,000, 2,50,000, दो पार्टनर्स हैं। एंड देन करंट अकाउंट का ना, दे हैव नॉट मेंशन्ड वेदर इट्स अ क्रेडिट बैलेंस और नॉट, तो वो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस ही होता है। दे हैव, ओके सॉरी, हाँ। और लायबिलिटी की कुछ भी नहीं है, रिजर्व कुछ दे नहीं रखे हैं। सो प्लीज कैलकुलेट द गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट विल गिव यू गुडविल ऑफ द फर्म। ये कितना आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड? 5,50,000। सो 10 लाख माइनस 5,50,000, 4,50,000। Okay, next question। So capital employed is also known as net assets। So in question number 29 they have given you net assets। net assets आपका capital employed तो हो गया। Now you need capitalized value।
फॉर कैपिटलाइज्ड वैल्यू यू रिक्वायर एवरेज प्रॉफिट. तो आपको 5 इयर्स के कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिट्स गिवन है. कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट. One, two, three, four, five. Please calculate. Let me know. 50. बेटा थोड़ा सा कैलकुलेटर कम यूज कर. 52. अरे यार 52 200. बाकी सबका आ रहा है एवरेज प्रॉफिट. कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into 100 divided by rate. So guys, without calculator, can you please calculate? तू भी कैलकुलेटर की दुकान है. कितना? एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है क्वेश्चन में? यार ठीक आ रहा है, चेक कर लेना एक बार. Why can't I see capital employed? हाँ दे रखा है 2 lakh. That is net assets. So goodwill is 61,000. Okay, question 30. क्वेश्चन 30 के अंदर यू हैव एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 लाख. and you will calculate capitalized value which is equal to 4 lakh into 100 divided by कितना रेट गिवन है? 10, that is 40 lakh. Then they have given you assets and external liability that will give you capital employed. So capital employed आपका हो गया 40 lakh minus 7 lakh 20. कितना हो गया? 7 lakh 20. So 32 lakh 80,000. And goodwill will be 40 lakh minus 32 lakh 80,000. That will be 7 lakh 20. एक चीज का ध्यान रखना, इफ यू आर कैलकुलेटिंग गुडविल, एवरी मेथड इज गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट आंसर. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता सारे मेथड सेम आंसर दें. ठीक है. एंड गाइस एक चीज और, क्या इस गुडविल को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? एज पर विच स्टैंडर्ड? As per my standard, as per AS 26. Okay, same question you have to also calculate goodwill using super profit method. अब उसने क्या वहां पर बोला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. उसने वहां पर बोला है नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन है. तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन है तो गुडविल कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस. सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, गाइस बताना कितना था एवरेज प्रॉफिट? 4 लाख. And capital employed we have calculated 32 lakh 80,000. 30th में सुपर प्रॉफिट मेथड इज द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेजेस. फर्स्ट वाला अच्छा, फिर हमने वो गलत करा है. फिर ये तो हमने गलत करा है, ये हमने पढ़ा ही नहीं था. ये तो हमने वो कर दिया, दिस इज एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन. तो ठीक है, कोई नहीं. ओके, उस मेथड से भी कर लेते हैं, दोनों एक ही तरीके से होंगे. सो या नाउ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 32 लाख 80,000 इनटू रेट कितना गिवन है? दिस इज नॉट सुपर प्रॉफिट, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट into 10%. So this is 3,28,000. Then super profit is equal to
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सो 4 लाख माइनस 3,28,000 कितना आएगा? अब दो मेथड्स हैं, एक तो है आपका गुडविल which is equal to super profit into number of year purchases and that is 3. So 72,000 into 3 and second वो बोल रहा है capitalization of super profit, तो इसके अंदर you will take super profit into 100 divided by rate, ठीक है? और इसमें क्या है 2,16,000। Guys, question number 31. देखो आई सेड फर्स्ट चैप्टर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर तो हम करेंगे नहीं, बट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर अगर हम करें भी तो थर्ड चैप्टर भी बहुत जल्दी खिंच जाता है। फोर्थ चैप्टर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, फिफ्थ चैप्टर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उसके बाद खत्म है वो। गाइस प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट। आपके स्कूल के अंदर मिड टर्म या प्री मिड टर्म जो भी हो रहे हैं, वेदर दिस बुक इज कमिंग और नॉट, बट समर वेकेशन के अंदर ये बुक कंप्लीट कर दो, ठीक है? You will be at a comfortable level. Question number 31. A firm earns profit of 5 lakh. So average profit. Normal rate of return is 10%. Assets आपको given है और outside liabilities आपको given है. That is 55 and 14. Calculate the value of goodwill according to capitalization of super profit as well as capitalization of average profit. ठीक है? So average profit is given to you and then calculate capital employed. Capital employed कितना given है? 55 लाख। अरे बहुत शोर मचा रहे तो। अरे बट उसको आदत है, तो पूछे या नहीं वो बता के ही रहेगा। Guys, please calculate 41. Okay, capital employed आ गया, normal profit into rate कितना है? Then super profit, average profit minus normal profit. Average profit हमारा 5 लाख है and normal profit is 4,10,000. So 90,000. Goodwill 90,000 into number of year purchases given है? नहीं, हमें क्या करना है? Capitalization of super profit. So capitalization of super profit कैसे होगा? Super profit into rate into 100 divided by rate. Okay. For capitalization of average profit, step 1 क्या था? Capitalized value, which is average profit into 100 by rate. So 4 lakh into 100 by 10%. Next, capital employed. Capital employed हमने calculate करा था 41 लाख. हाँ? 5 लाख था क्या? Oh, I'm sorry, it's 5 lakh. कितनी हो गया? And ये कितना given है? ये था 41 लाख. So your goodwill is capitalized value minus capital employed. So 50 minus 41, 9 lakh. देखो क्वेश्चन नंबर 32. Guys, show or come please. आरफ का ही नाम आएगा। So इसमें सबने कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल लिया ना? कितना है प्लीज बताना?
बाजी शोर आ रहा है। ओके, एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी सबने निकाल लिया। 1,10,000 into rate by 100, so 8 by 100, 8,800। ठीक है, अच्छा अब देखो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इन दिस क्वेश्चन व्हाट आर दे आस्किंग यू टू कैलकुलेट? उस पे आ रहा हूँ। हाँ, निकालने के लिए बोला है, तो ये तो आ गया, ये हमें चाहिए। ये सुपर प्रॉफिट कहां से आएगा? गुडविल से। सो गुडविल आपको कितना गिवन है? So goodwill is equal to super profit into, have they given you number of year purchases? 4. So 60,000, only 4. ये हो, so हो कितना आया? 15,000। so ये 15,000 आ गया। अब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। 15,000 प्लस 8,800। ठीक है पाजी, पल्ले पड़ा कुछ? पल्ले पड़ा है तो मेरे से क्यों करवाया? 33 में क्या दिक्कत आ रही है? एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है। सो एवरेज प्रॉफिट इज 1,50,000 एंड सुपर प्रॉफिट, यार हमें क्या निकालना है? सर निकालना है, क्या निकालना है क्वेश्चन में? आपने क्वेश्चन पढ़ा है, क्या निकालना है बेटा? गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होता है? सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट। सुपर प्रॉफिट दे नहीं रखा क्वेश्चन में, ये नहीं हो पा रहा। 50 तू ही था। एक चीज दूं, क्वेश्चन 36। हेलो पीपल, यार क्या हो गया? पेन चाहिए क्या? क्वेश्चन 36। भाई 36 कर लो। So 2026 2 lakh profit given है, then 2025 1,80,000, 2024 1,60,000. This is given to us. Can someone calculate average profit? Average profit मेरे ख्याल से 1,80,000 है। ठीक है गाइस, तो देखो इसका लॉजिक बस ये है, 20,000 का डिफरेंस, 20,000 का डिफरेंस, तो ये एवरेज प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सेम है ना डिफरेंस। So average profit is equal to 1,80,000. But can I take this average profit? But can I take this average profit for calculating goodwill? क्वेश्चन में पढ़ो, कोई एडिशनल चीज है? पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो हमें माइनस करना है हर साल में से। So rather than subtracting it from every year, we'll calculate the average profit and subtract it only once. So 80,000 है, नहीं 1 लाख है ना? हाँ, so it's remuneration of all the partners. So your profit is 80,000. ठीक है, और then next they are asking you to calculate average profit से goodwill. So goodwill is equal to average profit into number of year purchases. $80,000 into कितने number of year purchases? 3. सेकेंड मेथड क्या दे रखा है? सुपर प्रॉफिट। बेटा क्वेश्चन है ना, 4 है ना क्वेश्चन।
सो सेकंड किस मेथड से निकालना है आपको? सुपर प्रॉफिट मेथड से. फॉर सुपर प्रॉफिट यू नीड द नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए. सो कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 7 लाख. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, बट दे ही रखा है हमें, तो मैं निकाल क्यों रहा हूं मैं? आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख. माइनस हो गया. हाँ, दे भी रखा है, निकाल भी लो, सेम ही आएगा, अलग थोड़ी आ सकता है. सो ऑलरेडी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 6 लाख एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो निकालने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है. नाउ कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट. रेट ऑफ रिटर्न कितना है? एसपी 20,000. अरे नॉर्मल वो रेट बताओ. 10%. ठीक है. सो नाउ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट वाज 80,000, normal profit 60,000, so super profit is 20,000, and goodwill, super profit into number of year purchases. That's it. Do the rest part.